Hi everybody, Assalamu alaikum. This is Jawahar Alvi. The video that I'm making today is about trauma, and I wanted, as I made earlier a video, and it was about trauma, and I introduced what trauma is and what trauma does to us. तो आज की जो वीडियो मैं बना रही हूँ, we're going to talk a little bit about what trauma does to our body. And I'm going to start with a poem, and this poem was written by Ash Desrocher. And I really like this poem because it talks about some hope. And, people who are going through trauma, they need hope. So the poem goes like, trauma can shatter a heart in two, leaving scars that may never heal through. Like a storm that wrecks a peaceful shore, it can leave us bewildered, lost, and sore. The memories of pain can linger on long after the storm has passed and gone, a heavy weight that seems impossible to bear, a wound that is often too deep to repair. But in time, the light can slowly trickle through, illuminating paths that once seemed askew. And though the struggle may leave us weak, it's through the darkness that we find strength to seek. Each day a battle to reclaim our right, to live and hope and breathe in light. And though we may falter and stumble on the way, we will rise up stronger with each passing day. So this is Hope, and I wanted to talk to you about 4 ways that trauma, affects our body, and what are the things that we can do to reverse the effects of it, and how we can help ourselves to get out of it. So जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों से बात की थी कि कभी भी इफ़ वी गो थ्रू एन इवेंट, जिस तरह के कोई अब्यूज़ हो गया, असॉल्ट हो गया, या कोई ऐसा इवेंट हुआ जो कि जिससे कि हमें परेशानी हो गई, या वी फील बैड एंड वी फील इनवैलिडेटेड, तो वी गो थ्रू समथिंग दैट इज़ कॉल्ड एज अ ट्रॉमा. और वो जो ट्रॉमा है, it doesn't just go away. It lingers on with us, and it is, and then we go through something that is called as PTSD, which is post-traumatic stress disorder, and it affects our emotions, और उससे हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, जिसकी वजह से वी गेट सिक फिज़िकली एंड मेंटली. ठीक है, सो हमारी फ़िज़िकल सेहत के ऊपर भी असर आएगा और हमारी मेंटल सेहत के ऊपर भी असर आएगा. सो व्हाट आर द 4 ways दैट इट अफेक्ट्स आवर बॉडी. सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम किसी ट्रॉमा से गुजरते हैं, या अगर हमारे साथ कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते, तो हमारी जो बॉडी है, इट गोज़ इनटू 3 F's, विच इज़ फाइट, फ्लाइट और फ्रीज़. या तो हम वहाँ से भाग जाते हैं, या हम वी फाइट बैक, और या हम फ्रीज़ हो जाते हैं. सो इन दिस व्हाट हैपन्स इज़ दैट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर रेप्टाइल ब्रेन, जो कि ये रिएक्शंस शो करता है. तो हमारा जो ब्रेन है, इट वांट्स टू कीप अस सेफ, एंड इन दैट आइदर वी फाइट, वी फ्लाइट, यानी कि हम भाग जाते हैं या हम फ्रीज़ हो जाते हैं. उसमें ये होता है कि हमारा जो ब्रेन है, बिकॉज इट वांट्स टू कीप अस सेफ, इट स्टॉप्स एवरीथिंग एंड इट स्टार्ट्स टू मेक एड्रेलिन टू सेंड टू द बिग मसल, ताकि जो बिग मसल है या तो वो फाइट करे, या वो भाग जाए, या वो फ्रीज हो जाए. ठीक है, तो उसमें द ब्रेन इज आस्किंग अस टू टेक दिस एक्शन टू स्टे सेफ. अब पीटीएसडी जो है ना, वो उसके बाद जो है ना वो आता है, और पीटीएसडी जो है ना, उसमें हम हर वक्त टेंस्ड रहते हैं, लाइक वी आर ऑलवेज टेंस्ड एंड ऑलवेज नर्वस एंड एंक्शियस. So, what is basically PTSD? It affects our body in 4 ways. The first is that we are going to have painful thoughts about the event. The second is going to be memories. We're going to start have memories of the events जहाँ पे या हमें मार पड़ी थी, घर से निकाल दिया गया था, या हमने अपने पेरेंट्स को लड़ता हुआ देखा, या हमें खाना नहीं मिला, या हमें अब्यूज़ किया गया या नेग्लेक्ट किया गया. उसमें फ्लैशबैक्स भी होंगी, मेमोरी लॉस भी हो सकता है, क्योंकि आई हैव हैड दैट. एंड my mother has dementia.
So I'm predisposed to having genetically predisposed to having dementia. लेकिन कई दफ़ा मैं चीज़ें भूल जाती हूँ, मुझे अपनी मेमोरीज़ नहीं याद रहती, तो मुझे कई दफ़ा मेरे दोस्त या मेरी बेटी मुझे याद कराती है, माँ वो भी हुआ था. And I'm like, yeah, I forgot that happened too. Because मेरी जो memory है वो मुझे protect कर रही है. Because it doesn't want to give me those painful memories again and again. तो मैं भूल जाती हूँ. I lose those memories. Intense emotions. एकदम से बहुत ज़्यादा रोना आएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, फिर एकदम से मैं depression में चले जाएंगे हम लोग. I'll be scared. I'll be jumpy. एकदम से आवाज़ आई तो मैं jumpy हो जाती हूँ और कई दफ़ा मैं numb हो जाती हूँ. यानी कि अगर बहुत रोने वाली बात हो तो मैं नहीं रोऊंगी. अगर कोई बहुत जो है वो खुशी वाली बात होगी तो आई विल नॉट रिएक्ट टू दैट. सो माई बॉडी इज़ नम. सो आई एम श्योर दैट पीपल हु हैव गॉन थ्रू PTSD दे हैव द सेम सिम्टम्स. एंड देन बॉडी जो चेंजेस हमारे अंदर आते हैं वो आता है, वी आर ऑलवेज ऑन द एज, यू नो, we are sweaty all the time. Body fluids आना शुरू हो जाते हैं, like more urination, more salivation, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, night sweats हो रहे हैं. उसके बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इंसोम्निया है, नींद नहीं आ रही रात को, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, नाइटमेयर्स आ रहे हैं, बेड वेटिंग हो रही है. और जो बिहेवियर चेंजेस हैं उसमें फिर हमें ट्रॉमा एंड मेमोरी जो है वो आती है और उसकी वजह से जो है ना हम वी रिएक्ट टू डिफरेंट सिचुएशंस इन वेरी अनलॉजिकल मैनर्स. अब जो ब्रेन है इट हैज़ अडेप्टेड टू द इवेंट इन अ वे दैट यू नो वी वांट टू अवॉइड डेंजर. तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी ज़रा सी आवाज़ आ गई हम फ़ौरन एकदम से परेशान हो जाते हैं, कुछ भी थोड़ा सा हो गया हमारे रिएक्शंस जो हैं वो बहुत अजीब व गरीब किस्म के हो जाते हैं. अब ट्रॉमा हमारे ब्रेन को 4 वेज में अफेक्ट करता है. सबसे पहले अमिगडला. अमिगडला इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन. अमिगडला जो है स्कैन करता है आपके एनवायरनमेंट में और स्कैन करता है और स्कैन करके ये देखता है कि इट्स लाइक अ स्मोक डिटेक्टर और अ फायर अलार्म. ठीक है, वो ये देखता है कि यहाँ पे कहीं पे कोई ख़तरा तो नहीं है, कोई स्मोक तो नहीं आ रही, तो इट स्मोक्स. तो वो जैसे ही ट्रॉमा आता है तो हमारा अमिगडला जो है ना वो एक्टिवेट हो जाता है. जैसे वो एक्टिवेट होता है आफ्टर द ट्रॉमा, you know, it becomes less tolerant to stress. So afterwards जब अब कोई और स्ट्रेसफुल इवेंट आएगा तो हमारा एमिगडला जो है ना वो छोटे छोटे स्ट्रेसेस के ऊपर एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा. यानी कि इतनी बड़ी कोई बात भी नहीं हुई, एक्टिवेट हो गया फ़ौरन. नेक्स्ट जो द सेकेंड थिंग इज़ वो ये है कि आपके जो ब्रेन स्कैन्स हमने किए हैं उससे हमें ये पता चलता है कि जो हिपोकैम्पस है हमारा वो श्रिंक हो जाता है ट्रॉमा के बाद. बट द गुड न्यूज़ इज़ दैट इट कैन ऑलवेज कम बैक एंड इट कैन ऑलवेज get better, but it does shrink after a trauma. And it is less likely to process emotions. Past and present connections जो है वो फिर हिपोकैम्पस जो है वो नहीं कर सकता और उसमें मिसिंग मेमोरीज भी आ जाती हैं. और जब मेमोरीज पॉप अप होती हैं तो फिर एकदम से बंदा डर जाता है और रोता है और नाइटमेयर्स आ जाते हैं, प्रीवियस फ्लैशबैक्स आने शुरू हो जाते हैं. अमिगडला में शॉर्ट टर्म मेमोरीज भी आती हैं और उसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है. सो इट स्टार्ट्स टू मिरर लाइक आइदर डिलीरियम और डिमेंशिया. And I had a lot of that, and you know I didn't know why I'm having that, and now I feel like कि मेरी mother जो है, because she has gone through a lot of trauma in her life, I feel like a lot of her dementia was instigated by her depression and the trauma that she has gone through. थर्ड थिंग इज़ प्री फ्रंटल कोर्टेक्स जो है वो भी श्रिंक हो जाता है और उसमें जो है ना वही डिस्ट्रप्टिव थॉट्स आपको आती हैं फाइट, फ्लाइट और फ्रीज की. आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है, जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग है वो आप नहीं करते. अब देखिए अगर आप न्यूरोप्लास्टिसिटी की तरफ जाएँ ना तो आपको ये पता चलता है कि व्हेन योर ब्रेन, द मोर यू यूज़ योर ब्रेन the better it's going to get. So there is going to be more neuroplasticity in it. But when your prefrontal cortex is going to shrink because of the trauma and you are not using your brain that much, then you are going to stop thinking about stuff. You're going to stop studying, you're going to stop going to school, and it's going to make it harder for you to do stuff, and you're going to be just trapped in the loop of that trauma. The fourth thing is that you're constantly on the rush, on the edge.
ठीक है, तो आपके अंदर एड्रेनल फटीक होगी, ओवर एक्टिव डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम होगा, क्रॉनिक डिजीज़ेज़ आपकी बॉडी में आएंगे जिसमें ऑटो इम्यून डिजीज़ आ जाता है, ADHD आ जाती है, ओबिसिटी आ जाती है, इम्यून डिसऑर्डर्स आ जाते हैं और मसल टेंशन होती है। यानी कि कॉन्स्टेंटली आपकी बॉडी जो है ना वो थकी थकी रहेगी, नींद आपकी कभी पूरी नहीं होगी। ठीक है, सो द गुड न्यूज़ इज़ दैट जैसे आपका वो सिस्टम ख़राब हुआ वैसे ही आप उसको ठीक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें न्यूरोप्लास्टिसिटी के साथ ठीक की जा सकती हैं और आप अपने ब्रेन को वापस रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में लेके आ सकते हैं। और उसके लिए वो द थिंग्स दैट यू नीड टू डू आर गो टू अ गुड थेरेपिस्ट, अ गुड काउंसलर, और उसमें बहुत अच्छी टेक्निक्स आजकल हैं जिसमें कि राइटिंग एक्सरसाइजेज हैं, DBT है, योगा है, मेडिटेशन है और EMDR है। सो हमारे बहुत अच्छे कुछ लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में EMDR कर रहे हैं, और उसमें से एक जिनको मैं जानती हूँ और जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं वो हैं डॉक्टर आयज़ा यज़दानी, एंड शी इज़ एक्चुअली चोज़न फ्रॉम पाकिस्तान एट एन इंटरनेशनल लेवल टू डू EMDR। सो आप उनको भी ज़रूर मिलें जाके, या आप किसी और को दिखाएं, बट दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू इन ऑर्डर टू गेट योर सेल्फ बेटर एंड हील फ्रॉम अ ट्रामा। देखिए, things happen in life. I've been through a lot, and but you have to heal because this is life and life has to keep on going. Thank you so much for listening to me. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. Till next time. Allah Hafiz.